Hello everyone. In utility and instrumentation and process control, instrumentation in chemical plant, utilities and instrumentation in chemical plant subject, we discussed in previous lecture the syllabus of your chapters of your syllabus. Okay, so today we discussing and start unit number 4, the basics of or introduction of PI, process instrumentation. What is process and what is process instrumentation? Okay, so process instrumentation in which what is the need and scope of PI, process instrumentation. Okay, instrumentation is referred to the technology of using instrument for the purpose of observation, measurement and control of physical and chemical properties of material. Why it is the need of instrumentation की requirement क्यों है? So पहला हमारे सिलेबस का वी डिस्कस चैप्टर नंबर 4 इज स्टार्ट, सिलेबस का चैप्टर नंबर हम 4 स्टार्ट कर रहे हैं. उसके अंदर हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज द स्कोप एंड नीड ऑफ प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन. इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है एंड व्हाट इज प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन. इंस्ट्रूमेंटेशन इज रिफर द टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है, यूजिंग इंस्ट्रूमेंट वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज करता है. किस लिए, उसका पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑब्जर्वेशन. उस प्रोसेस का ऑब्जर्वेशन करना है, मेजरमेंट करना है एंड कंट्रोल ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल. सो इट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन. Then second is PI, process instrumentation. It covers the measurement of variable involvement in process industries such as chemical, petroleum, power generation, air conditioning, metallurgical, food, textile, paper and many other industries. Process instrumentation what covers that? It covers that the measurement of variable, जो बहुत सारे वेरिएबल प्रोसेस के अंदर अवेलेबल है, इन्वॉल्व है, तो वो प्रोसेस इंडस्ट्रीज के अंदर से, प्रोसेस इंडस्ट्रीज के अंदर क्या करेंगे हम, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, एयर कंडीशनिंग, मेटलर्जिकल, फूड, टेक्सटाइल, पेपर एंड मेनी अदर इंडस्ट्रीज. तो ये सारी इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, सो देयर आर द प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन होता है. इंस्ट्रूमेंटेशन encompasses the area of detection, acquisition, control and analysis of the data. इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर मेनली क्या होता है, that encompasses the area of detection, acquisition, control and analysis of data. Application of instrumentation system result in saving in time and labor involved. तो इंस्ट्रूमेंटेशन करने का मेन फ़ायदा क्या है, तो मेन फ़ायदा ये है कि सिस्टम्स रिजल्ट, उसके रिजल्ट को हम कैसे बेटर बना सके, रिजल्ट इंक्रीज कर सके, टाइम बचा सके और मैक्सिमम रिमूवल ऑफ टाइम एंड ऑल्सो लेबर इन्वॉल्वमेंट, कहाँ पे कितने लेबर की रिक्वायरमेंट है, बेटर क्वालिटी ऑफ कंट्रोल, कंट्रोलिंग की बेटर क्वालिटी मिल जाए, हाई प्लांट यूटिलाइजेशन, बेटर मैन पावर प्रोडक्टिविटी एंड मटेरियल एंड एनर्जी सेविंग. सो ये सब पॉइंट्स के लिए हमें प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए क्या मिलता है कि मटेरियल एंड एनर्जी दोनों का सेविंग होता है, बेटर मैन पावरिंग का सेविंग होता है. ओके, next, typical application of instrumentation system are the application of system where it is used or applicable, the measurement of system or process parameters. If any chemical or any process is occurs
Okay, so we need to check each and every parameter at each point. So at that point instrumentation process is required. So measurement, किसी भी सिस्टम का मेजरमेंट करने के लिए we need to process instrumentation. कंट्रोल ऑफ अ प्रोसेस और ऑपरेशन, सेकंड थिंग क्या है, कंट्रोल ऑफ प्रोसेस और ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए या तो फिर प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन इम्पोर्टेंट है. थर्ड, टू simulate experimentally the actual condition of complex system, which is help to study the true behavior of the system under different operating condition. This information is obtained from a scale model, which is then translated into the design and development for the prototype. थर्ड पॉइंट ये है कि कोई भी सिस्टम है, ओके, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम की कंडीशन को एक्सपेरिमेंटिकली स्टडी कर सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, स्टडी द behavior of true behavior of the system under the different operating condition using different under condition. This information is obtained from a scale model which is then translated into the design and development of the prototype. तो पहले ये information किसके तौर पे मिलती है, स्केलिंग मॉडल के तौर पे मिलते हैं, which is converted translated into the design, वो डिज़ाइन में कन्वर्ट होती है एंड उसका डेवलपमेंट होता है. फोर्थ वन, इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन मेजरमेंट सिंगल सच एज एडिशनल सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड लिनियराइजेशन एक्सेट्रा. इंस्ट्रूमेशन आर किस लिए ज़रूरी है, तो परफॉर्मेंस इक्वेशन, परफॉर्मेंस के तौर पे एनी प्रोसेस ऑपरेशन के अंदर तो मेजरमेंट कर सकते हैं सिग्नल का, सिग्नल को ऐड करना है, सिग्नल को बात करना है, मल्टीप्लाइड करना है, डिवाइड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, लिनियराइज करना है, कांस्टेंट करना है, एक्सेट्रा. तो इसलिए इंस्ट्रूमेंटेशन ज़रूरी है. इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम आर यूज फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन स्टडीज, supplement design and development studies. Instrumentation system are used for conducting experiment design study, supplement design and development study. तो इंस्ट्रूमेंटेशन किस लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे सिस्टम के लिए इफ़ इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम आर यूज फॉरवर्ड इफ एक्सपेरिमेंटल इज ऑन गोइंग, सो डिज़ाइन फॉर एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए, एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट के लिए, सो दैट पर्पस के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन आर रिक्वायर्ड. एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट आर यूज फॉर वेरीफाइंग फिजिकल फिनोमिना एंड साइंटिफिक थ्योरीज. एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स आर यूज फॉर वेरीफाइंग फिजिकल फिनोमिना एज वेल एज साइंटिफिक थ्योरीज. Seventh one is quality control of the product. Most important point of this. So quality control, we are doing the quality control of the product, which mainly the various processes. Okay, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट. ओके, manufacturing of product as per the national international standards specification. Based on manufacturing products, जो manufacturing product है as per the national international standard पे हम उसको specify कर सकते हैं, and this ensurement of that product function as per the expectations. So measurement system कैसे काम करता है. So the flow diagram of the generalized measurement system is given below. So in previous we discussed the major application of the instrumentation system. So next measurement system कैसे measure कर सकता है. So the flow diagram is showing that first input measured. सो इनपुट कहाँ पे हम एंटर करेंगे, ट्रांसड्यूसर के अंदर हम इनपुट करेंगे, देन वो क्या करेगा, सिग्नल कंडीशनर को सेंड करेगा.
सिग्नल कंडीशनर। देन सिग्नल कंडीशनर को एडिशनली हम क्या प्रोवाइड करेंगे, पावर सप्लाई। और सिग्नल कंडीशनर क्या करेगा, फिल्टर के अंदर ऐड करेंगे। वो कहाँ पे जाएगा, फिल्टर के अंदर। और फिल्टर डायरेक्टली गोज टू इन टू स्ट्रीम, फर्स्ट ए एंड डी कन्वर्टर एंड देन A and D converter is again sent it to the digital system display। जो भी हमारी डिजिटल सिस्टम होगी वहाँ पे वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा जो भी कंडीशन का स्टेटमेंट हो रहा है। देन आफ्टर वो क्या करेगा, डायरेक्टली कंट्रोल पे हो जाएगा। सो टू द डिजिटल कंट्रोलर, तो डिजिटली डायरेक्टली वहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। तो फिल्टर में से उसे सिग्नल मिलते हैं, सिग्नल वो डायरेक्टली कहाँ करता है, कन्वर्टर को सेंड इट करता है। और देन वो क्या करता है, डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम उसे डिफाइन करता है कि ये प्रॉब्लम है और ये सिस्टमिकली डिफेक्ट है। देन वो सिस्टम को ऐसे कंट्रोल करता है। देन ए एंड डी कन्वर्टर का मेन 2 पार्ट्स होता है कि वो क्या करता है, दैट इज डिजिटल प्रिंटर। वो जो प्रोसेस है उसे क्या करेगा, डिजिटल प्रिंट करेगा या तो फिर डिजिटली स्टोरेज करेगा। एंड ये जो फाइनल है डिजिटल फिल्टर, तो डायरेक्टली क्या होगा, एनालॉग डिस्प्ले होगी तो उसके ऊपर कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। तो एनालॉग डिस्प्ले है सिस्टम, उसके ऊपर डिस्प्ले करेंगे एंड देन इट इज सेंड टू द प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। देन ये एनालॉग रिजल्ट सिस्टम है वो क्या करेंगे, फाइनलाइज टू कंट्रोल सिस्टम के अंदर। सो ईच पैरामीटर वी आर सीइंग इन डिटेल। फर्स्ट वन इज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर is a device which convert the measurand the quantity property of condition of to be measured into a usable output from such as a displacement, current, voltage, resistance change, capacitance change, etc. तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मर का काम करता है। दैट मीन्स वो आउटपुट करता है द डिस्प्लेसमेंट, करंट एज वेल एज वोल्टेज, रेजिस्टेंस चेंज, capacitance change. Okay, therefore a transducer may be mechanical, electrical, magnetic, optical, chemical, acoustic, thermal, nuclear construction, in the nuclear construction. So ये जो पूरा ट्रांसड्यूसर है दैट इज अ डिवाइस, वो क्या करता है, therefore the transducer may be mechanical, then इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल कन्वर्जेशन कर सकता है। मैनी एप्लीकेशंस यूज इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूशन विच कन्वर्ट अ फिजिकल, मैकेनिकल और ऑप्टिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इनटू द इलेक्ट्रिक वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस change proportional to the input measurement. So the electrical output signal can be amplified, transmitted over a long distance with some modification to meet the requirements of indicating of controlling elements. That means कि जो भी कंट्रोल सिस्टम है तो वो क्या करता है, फॉर एनी इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर तो वो क्या करेगा, फिजिकल और मैकेनिकल क्या करेगा, ऑप्टिकल क्वांटिटी को मेजर करके उसे इलेक्ट्रिक वोल्टेज के अंदर या तो फिर करंट के अंदर वो क्या या तो फिर रेजिस्टेंस चेंज थ्रू प्रोपोर्शनल टू द इनपुट मेजरमेंट करेगा। द इलेक्ट्रिक आउटपुट सिग्नल्स कैन बी एम्पलीफाइड। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल है तो वो उसे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो सिग्नल को कैप्चर कर सकते हैं, एम्पलीफाइड कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, उसे ट्रांसमिट कर सकते हैं एंड और ट्रांसमिट ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस, बहुत दूर तक हम उसे सेंड कर सकते हैं। सम मॉडिफिकेशन, उसके अंदर सम मॉडिफिकेशन करके वो सिग्नल को हम सेंड कर सकते हैं टू रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिकेटिंग द कंट्रोलिंग एलिमेंट एंड जो कंट्रोलिंग सिस्टम है उसे कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड इज सिग्नल कंडीशनर। सिग्नल कंडीशनर यूजुअली द आउटपुट ऑफ ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर का जो आउटपुट है तो
element is too small, that means in magnitude, or a weak in a strength to operate an indicator or a recorder. जो आउटपुट मिल रहा है ट्रांसड्यूसर से, तो वो उसका सिग्नल और मैग्नीट्यूड क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ही वीक होती है. तो वो क्या करता है, द सिग्नल कंडीशनर इज यूज टू मॉडिफाई एंड प्रोसेस आउटपुट ऑफ ट्रांसड्यूसर बाय एम्पलीफिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, फिल्टरिंग द अनवांटेड नॉइज सिग्नल, linearization, differentiation, integration, sampling, and AD conversion. So the output of conditioner may be an along or the digital quantity. मतलब सिग्नल कंडीशनर क्या करता है कि जो भी आउटपुट मिल रहा है ट्रांसड्यूसर के अंदर से, तो उसके अंदर जो भी नॉइज़ है उसे रिड्यूस करेगा और उसे प्रॉपर मैग्नीट्यूड देगा, उसका फिल्ट्रेशन करेगा, नॉइज़ अनवांटेड नॉइज़ को रिमूव करेगा, लिनियराइज करेंगे सिस्टम को, डिफरेंटिएशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग करेंगे और सैम्पलिंग करेंगे एंड एडी कंजर्वेशन करेंगे.